Professor Ishwar, Senior Director, Kalpana Chawla Center, Chandigarh University. Today, we have inaugurated a very prestigious national level university space technology event named as National Space Technology Conclave 2026 in association with ISRO, Department of Space and IIST Trivandrum. For the first time in the university system, almost more than 25 scientists of different sectors of Department of Space wings and industries came together to the Chandigarh to make it new system. How these academic institutions and industry come together to participate in the space technology, to motivate that, to take it forward, the Chandigarh University through Kalpana Chawla Center, jointly with Indian Institute of Space and Technology, IIST Trivandrum, we are organizing 2 days conclave with eminent personalities, directors, deputy directors, former directors, scientific secretaries, and scientists, space industry people, come together to a single platform to discuss and propose an idea how we can take it forward for the nation Viksit Bharat, how private university system can take it next step to support the Viksit Bharat towards space technology. And the first day, the whole discussions is going on, how the system can work for nation. Then second day, all the big people sitting here going to discuss how this space technology can be initiated, can take it forward in the Chandigarh University. There are many young students came forward to work in the space industry. The future is space, and for that, the whole support is going to be given to this university by this team came from Department of Space, Government of India, and other agencies. Thank you once again for the team, and thank you once again for the press and media, so for giving support for this conclave. Thank you. Please, the questions, the media has opened it is for the questions to answer. Okay, Dr. Kumar, I have a question with you. Yeah, Sai there from Prime Asia. डॉक्टर कुमार, आई होप ये कंफर्टेबल हिंदी में है। या बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर कुमार, अभी यहाँ पे तुम स्पीच सुन रहे थे, इसरो के बारे में स्पीच सुन रहे थे। डॉक्टर साहब has given an example कि जब the second person who landed on the moon, he specified that ये इंडिया के इसरो के बिना that was impossible for us, right? So अभी के लिए अगर बात करें तो बहुत सारे operations इंडिया इसरो चला रहा है। What are the latest operations going on? And secondly, how we are helping internationally, especially NASA or any other space institutes where India is in the leading point. I think ये इसरो के लिए है, तो अगर नीलेश सर इसको ले लें क्वेश्चन को तो अच्छा है। जैसे कि आपने पूछा कि नासा या अन्य स्पेस संस्थाओं के साथ क्या चल रहा है, तो उसमें एक मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में 30 जुलाई को हमने 1 साल पूरा किया जो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार प्रोजेक्ट था, NISR, जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है दुनिया के इतिहास में, क्योंकि अब तक का सबसे महंगा जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो छोड़ा था भारत और अमेरिका ने मिल के, इसरो और नासा ने मिल के। सो उसने अभी 1 साल कंप्लीट किया, तो उसमें अमेरिका ने यानी कि नासा ने एक रडार बनाया था, JPL वहाँ की जो संस्था है, उन्होंने L बैंड रडार बनाया था, और हमने S बैंड रडार यहाँ अहमदाबाद की जो हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है वहाँ पे बना था, और दो रडार एक साथ काम कर रहे हैं स्पेस से। और अभी तक का सबसे महंगा मिशन 13,000 करोड़ को उस पर लागत आई है। उसमें अमेरिका का पोर्शन तो लगभग 11,500 करोड़ है, हमारा केवल 1,500 करोड़ है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कोलोब्रेशन हमने कितने कम दाम में किया, और उनका जो उसमें अनुपात था बहुत ही ज़्यादा था। और उसकी खासियत ये है कि
जो अभी हम सुन रहे हैं लैंडस्लाइड हो रहा है सब जगह, लैंड डिफॉर्मेशन स्टडी, तो कोई ना कोई ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कोई वैज्ञानिक ऐसी कोई तकनीक ढूंढ लेगा जिससे कि हम अर्थक्वेक का भविष्य में प्रेडिक्शन कर पाए। ये डेटा की अभी शुरुआत है, अभी बहुत जैसे कहते हैं ना अर्ली डेज है, बट बहुत ही आशा है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो ये तो हुआ अमेरिका के साथ जो सहयोग हो रहा है, उससे साथ साथ अभी फ्रांस के साथ हमारा तृष्णा मिशन चल रहा है, तो उसका कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। उसमें अगेन फ्रांस एक पेलोड बना रहा है जो थर्मल कैमरा सिस्टम है, और भारत यानी कि हमारा जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है वो अन्य प्रकार के कैमरा बना रहे हैं MSS टाइप के। तो दोनों मिलके ये अगेन लॉन्च होगा। 2028 का हमारा टारगेट है उसको लॉन्च करने का। तो वो भी एक बड़ा सहयोग वाला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मिशन है। और हाल ही में इंडो US मीटिंग हुई थी पिछले महीने पे, तो दोनों का किस तरह से आगे सहयोग को बढ़ाए। जो कृष्णमूर्ति साहब ने बात की कि बस एडलिन ने बोला था कि इंडिया के बगैर चांद पे या मार्स पे जाना मुश्किल हो जाएगा भविष्य में, तो उसमें आर्टेमिस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रण दिया है। और जहाँ पे जो स्पेस हैबिटेट बनाने हैं चंद्र पे या भविष्य में मार्स पे, तो उसके लिए भारत उसमें सहयोग करे, उसकी प्रस्तावना अमेरिका की ओर से आई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। और आर्टेमिस मिशन जो अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और लगभग आई थिंक 60 सालों के बाद फिर से आदमी को चंद्र पे पहुंचने की अभी फिर से शुरुआत की है अमेरिका ने। 2028 तक वो मिशन लॉन्च होगा। तो ये मिशन में आगे बहुत ही बड़े कार्य होने वाले हैं, तो उसमें भी भारत और अमेरिका सहयोग करेंगे। अन्य कई लोगों को भी आमंत्रित किया है, बट इस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार के प्रोजेक्ट हर एक स्पेस संस्था के साथ चले। जापान के साथ JAXA के साथ हमारा जो चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन है, उसमें उनके रॉकेट में हम हमारा लैंडर लॉन्च करेंगे। और वो अभी चंद्रयान 3 तो 69.3 डिग्री लैटीट्यूड पे गए थे, यानी कि एग्जैक्टली साउथ पोल नहीं कह सकते, साउथ पोल की ओर गए थे हम, बट भारत पहला देश बना था चंद्रयान 3 के द्वारा। तो इस बार हम पूरा 89.3 डिग्री पे उतरेंगे, इट मीन्स एग्जैक्टली साउथ पोल पे उतरेंगे। तो वो जापान के साथ मिलके ये मिशन चल रहा है। अब मैं ऐड करूँगा प्राइवेट इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। तो क्योंकि इनस्पेस में एक इंटरनेशनल आउटरीच को भी मैं हेड कर रहा हूँ, हमने देखा 60 देशों से ज़्यादा हमने संबंध बचाया। अमेरिका से कई कंपनियों ने भारत में अपनी बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस का हो या मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। यहाँ की कंपनियाँ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी कर रही हैं कई। अब फरवरी में एक डेलीगेशन आया था 18 कंपनियों का US से, उनको हमने देखा था। उसके बाद में उन्होंने कई लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की है। क्यों? टैलेंट यहाँ है, कैपेसिटी यहाँ है वर्क करने की। कई कंपनियों ने अपना ऑफिस फॉरेन में खोला है, तो ऐसा है। और यहाँ पे मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड भी शुरू हो गया है। इटली से कई कंपनियों ने अपनी बिजनेस यहाँ शुरू कर दी है। कई मेल आते रहते हैं हमारे पास, सर कुछ सजेस्ट करो, हम उनको कनेक्ट करते हैं, आपस में वो बिजनेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में टोटल रिवैम्प कर दिया है। पहले FDI सिर्फ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में थी, जब भी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से थी। आफ्टर स्पेस सेक्टर रिफॉर्म इसको खोल दिया है, इसमें 100% अपर लिमिट है, बट सेक्टोरल कैप्स हैं। तो सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में अगर आ रहे हो 100% ऑटोमेटिक रूट, अगर सैटेलाइट मेकिंग में आ रहेगा, अगर 74% तक ऑटोमेटिक रूट में आती है, अगर लॉन्च व्हीकल में तो 49% ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या है? सिर्फ आपको RBI को इन्फॉर्म करना है, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट, कि मैं इस क्षेत्र में इतने % तक कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी चीज़ों ने इसको अनेबल किया है। सो FDI हैज इंक्रीज्ड, not only this, manufacturing has increased and increasing by the day. People are exploring the collaboration. और अभी पिछले इस साल में 2 सैटेलाइट तो इंडिया में बन के विदेशों के लिए गए हैं। तो काफ़ी कुछ चल रहा है इंटरनेशनली। नॉट ओनली दिस, हमारी छोटी स्टार्टअप्स को विदेश में रजिस्टर कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन के लिए आप रजिस्टर हो जाओ। तो काफ़ी अलग तरह का सिस्टम है जो ग्रो कर रहा है देश में। थैंक यू सर। इसरो के लिए क्वेश्चन है। Please ask me. So my name is Balwinder Singh. I'm from ETV Bharat.
May I know your name, sir? Yeah, Krishnamurthy, YBN. कृष्णमूर्ति सर, अभी हमारे दो बड़े टारगेट्स हैं कि एक तो गगनयान के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, दूसरा हमारा ये कि 2035 तक हमें अपना स्पेस स्टेशन बनाना है। इस बीच सर ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पिछले एक साल में कोई 100 से ज़्यादा जो बड़े लेवल के ऑफिसर्स हैं वो रिज़ाइन करके दूसरी जगह भी गए हैं। तो इसको कितना चैलेंज आप मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इस टारगेट को हम टाइमली अचीव कर पाएंगे? पहले first I have to tell 2018 I left ISRO. Okay, but I'll try to answer your question. See, always don't look at how many people have left. Whenever you have a bigger policy change, what Vinod Kumar has mentioned, that we need a private infrastructure which will launch satellites, है ना? There are a lot of startup companies, अभी संजय वगैरह हैं, और दूसरा और 450 startup companies हैं. बट उधर काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ पर है, लीड करने पर कहाँ पर है ना? सो ये 2 साल में 100 नंबर बड़ा नंबर नहीं है मेरे ख्याल से. ओके, बट अच्छा है बिकॉज पीपल हैज़ टू माइग्रेट, है ना? द नॉलेज हैज़ टू गो टू स्मॉल कंपनी, जो वो बड़ा हो जाएगा. कल भी रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी बता रहे कितना रोजगार ये टेक्नोलॉजी में आएगा, है ना? कहाँ से आएगा? सो पीपल हैज़ टू माइग्रेट. ये दिस इज नॉट ए नेगेटिव साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन. ओके, फ्रॉम दैट. Whereas the big missions are already planned, गगनयान और स्पेस स्टेशन, है ना? हर चीज़ में आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए. कहाँ से आएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज? हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक आइडेंटिफाई किया, इसलिए सभी हम क्यों आया है इधर, सभी हमको इधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों? कल इधर हर एक डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग में, साइंसेस में, आर्ट्स में, बिकॉज डिज़ाइनिंग भी चाहिए, डिज़ाइन वगैरह करने के लिए, एंड देन इनोवेटिव भी करना है. ऐसा नहीं है बुक में है सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा हमने कर देंगे, हर लोग कर सकता है. बट इधर यंग माइंड्स में, इंटरेस्टिंग में, आपने देखा होगा अभी 40 बच्चों को अवार्ड्स दिया हुआ है, ग्रुप अवार्ड्स, क्योंकि ये 1.5 महीने में ये स्मॉल सैटेलाइट के बारे में पहले एक प्रोग्राम किया था, बूटरैप. उधर हमारा साथी वेंकट राव, नागेश्वर राव, दीज आर ऑल द पीपल ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स वगैरह बनाए हैं, वो आके उनको ट्रेनिंग किया था. अभी 1.5 महीने में वो लोग साइंटिस्ट जैसे बात कर रहे हैं, है ना? कि स्ट्रक्चर क्या है, थर्मल बैलेंस क्या है ना? ये सब कुछ हमको बहुत खुशी हुआ. सो अभी क्या है, पहले उनको प्रेरणा देना है, उसके बाद उनको बैकअप करना है टेक्निकल नॉलेज, और हाथ से कैसा बनाने के लिए लैब्स वगैरह बनाने के लिए. इसलिए हमारा सुबह भी हम बाबा साहब से, और पिछली बार मैंने ऑनरेबल चांसलर साहब से भी बात किया, अच्छे सा लैब्स बनने के इधर, देन वी विल गेट एनीथिंग. सो कल्पना चावला सेंटर ऑलरेडी है इधर एस्टैब्लिश, सो फलक्रम बन जाता है सब डिपार्टमेंट्स को लेके ये काम करवाने के लिए और कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए. सो कितना भी हो कमी होगा, है ना? So we had to keep on developing. So don't worry about 2 things. What is happening? There's a clear-cut mandates are there. Everyone was working towards the same cause. But whatever operation satellites, operation systems, and to do our InSpace has taken, and Ensil, our Mangesh is somewhere here. They actually launched the satellites as a commercial company. अच्छा सर, जैसे सुभांशु जी जाके आए हैं ISS पे, तो अपना इंडिया का जो स्पेस स्टेशन जो हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें कितनी हेल्प हुई है इसको लेकर? नहीं, see, it's not just only one astronaut, है ना? There are team of astronauts have been trained, and training center अभी इंडिया में भी, I understand Bailalu में we have a training center, but there are कुछ disciplines we are now slowly getting through. So we'll have more number of astronauts. Because if you have a big program of having your own space station, आपको बैकअप में काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स चाहिए, है ना? बट पहले मोटिवेट करना है सबको, है ना? सभी we wanted also him here, but because of time schedule he is unable to come. He will come sometime here also. But motivation, है ना? And then we have to keep higher targets of doing things. बट उसके लिए काफ़ी सेंसार्स इंडिजिनसली करना है. हम सभी बात कर रहे हैं, बट आपको मालूम है क्या क्या इंडिजिनस नहीं है आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में. तो इसलिए कमलजीत सिंह जी भी आएंगे, DG SCL, देन
इधर डीजी स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी है, बिकॉज ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी बना हुआ है, यानी कि उनको क्या क्या चाहिए, कौन करेगा वो काम, यानी इसलिए हमको इन स्पेस भी है और NSL भी है, and there are other ISRO agencies. For ISRO there is also capacity building office which also looks into all that beside the centers. Yeah. गुड आफ्टरनून सर, आई एम रानू मिश्रा फ्रॉम पंजाब केसरी। सर, दुनिया इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं तमाम देशों के बीच संघर्ष चल रहा है। कुछ देशों में हो सकता है आने वाले दिनों में टेंशनबाजी शुरू हो जाए। मेरा सवाल इसरो से ये है कि डिफेंस के लिए इसरो क्या कुछ नया करने वाला है, ऐसे कोई सैटेलाइट हो, ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि सेना को मजबूती मिले, डिफेंस सेक्टर। हमने सिविलियन सैटेलाइट्स बनाता है ना, देयर इज अ क्लियर पॉलिसी गाइडलाइंस है, ओके, डिफेंस सैटेलाइट, बट कोई भी आके हमको सैटेलाइट बनाओ, हम बनाएंगे। किसी को सैटेलाइट लॉन्च करना है, हम लॉन्च करेंगे, है ना, इसरो, बिकॉज आई एम नॉट इसरो राइट नाउ, ओके, आई एम आउट ऑफ इसरो, एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नीलेश कैन करेक्ट मी सब्सिक्वेंटली। Yeah, no, I'll just come to, because he is also just retired, so I'll just tell you the overall framework. He will add. So, whenever there's a satellite missions, because, or there's a war, there are different type of satellites will come, spy satellites actually. But we didn't leave like that. We have a dialogue with the defense groups, and they want some specific satellites. Their satellites has been made and launched. That's where Operation Sindoor में हमारा पास Cartosat series of satellites है, और उसमें EVM करके एडिशनल पेलोड भी हमने रखा था, यानी कि सैटेलाइट मूव होगा, अर्थ इज मूविंग, and we can exactly pinpoint each of the locations. That's where we had an upper hand. When you have an intelligence, then you have the other systems which will do all sorts of things. So one is, but we have a clear distinction. I think the distinction still is there, Nilesh, on that. So we need to have a distinction between the space, and today we have a defense space agency also is there, you know. So that is a, maybe I'll ask Nilesh. Yeah, I'll ask Nilesh to do that. तो जैसा कि कृष्णमूर्ति साहब ने बताया कि पहले एक क्लियर डिस्टिंक्शन होता था कि स्पेस एक हैंडल करेंगे सिविलियन स्पेस, और डिफेंस का काम अलग तरीके से होगा। बट आजकल दुनिया में आपने देखा है कि ये जो लकीर थी वो मिट रही है, दोनों कई स्पेस एजेंसी अन्य कार्य भी करती हैं। तो इसी दिशा में उन्होंने बताया जिस तरह के डिफेंस स्पेस एजेंसी भारत में ऑलरेडी स्थापित हुई है, तो अभी उनका काम रहेगा भविष्य में। बट अभी शुरुआत के दिन है, तो अभी इसरो कुछ कार्य कर रहा है। न्यूज़पेपर में भी आया था पहले भी कि हमारा स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम है SBS। तो उसमें पहले जैसे कि साहब ने बताया कि कार्टोसैट सीरीज़ के सैटेलाइट तो काम अपना कर ही रहे हैं, जिसके द्वारा हम हमारी सुरक्षा की ध्यान रखते हैं देश का। बट अभी स्पेसिफिक रूप से SBS प्रोग्राम में 52 सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, और उसके लिए लगभग 25,000 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है डिफेंस की ओर से। तो उसमें से 31 जो सैटेलाइट है वो प्राइवेट इंडस्ट्री करेगी, और इन स्पेस और उनके सहयोग से ये सब हो रहा है। तो 3 प्राइवेट कंपनियों को, एंटेरिस, ध्रुवा स्पेस जो जहाँ बैठे थे साहब, और पिक्सेल, वो 3 मिलके 8 और 16, 8 और 15, तो 31 सैटेलाइट वो लोग बनाएंगे। 21 सैटेलाइट इसरो बनाएगा, जिसमें से एक अभी लॉन्च होने जा रहा है सितंबर में। तो वो आप देखेंगे, उसकी काफ़ी चर्चा होगी। और उसके बाद 20 और सैटेलाइट बन रहे हैं, जिसमें रडार सैटेलाइट है और कार्टोसेट टाइप के अन्य ऑप्टिकल सेंसर्स भी हैं। तो कुल मिला के दोनों ओर से प्राइवेट में भी अभी कार्य हो रहा है और इसरो में भी हो रहा है, और भविष्य में पूरा डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा आगे कार्य होता रहेगा। तो सर्वेलेंस के मामले में, यानी कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी के मामले में भारत पूरी तरह से स्वावलंबी है और अपना कार्य कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया, दूसरे देश को रोकने का हमको कोई किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पेस तो सबके लिए ओपन है। तो कोई भी दूसरे राष्ट्र पे निगरानी रखता ही है, तो उनको रखने तो हम अपनी ओर से अपना कार्य करेंगे कि उनको काउंटर करने की। स्पेस इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव करना है, सवाल वाला चर्चा हैगा, काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैगा। क्या करके स्पेस इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वॉल्व है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਐਸਪੀਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣਾ
काम कर रहेगा वाई प्राइवेट सेक्टर ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ एजिलिटी होती है ਜਿਹੜੀ फास्ट प्रोसेसर होता है कि एक काम देता है वो काम थोड़ा छेती करने की कोशिश करते हैं ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸ਼ੀ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ से दूर ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਨਾਲ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 3 to 5 ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ 150 ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਣਗੇ तो 150 ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ कि किस तरह अकेडमी इंडस्ट्री दी ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ तो प्रॉब्लम ਇੱਥੇ आ रही है कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੇ 400 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਅਗਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 4000 ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹ 4000 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਇਸਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਹੈ अच्छा 25 साल पहले अपना टेलीकॉम का की सीगा सारे बंदे बीएसएनएल को पाई सी ना कि प्राइवेट सेक्टर ने काम शुरू किया सीगा तो हुन जेड़ा है कि इसे कब हो रहा तो बंदे किथों आके टेट पे तो किथों और इसरो भेजेगा इसरो को लेवांगे इसरा बट दैट इज नॉट इन द अल्टीमेट सॉल्यूशन ए होगा कि अनु ਅਸੀਂ वी हैव टू बिल्ड द टैलेंट और टैलेंट बिल्ड करने वास्ते सारी एजेंसियां इकट्ठी हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपना एक वहां कितना आएगा अपने डेवलपमेंट करेंगी आने वाले 3-4-5 साल बाद ਅਸੀਂ ट्रेन पैन पावर मिलने लगेगी पर तो प्रॉब्लम यह हो रही है कि हुने सानू ट्रेन पैन पावर कितों आई वो हुने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग नॉर्मल फिनिशिंग प्रोग्राम होते उस करके असो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ਅਸੀਂ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बाहर रही है जो काम कर रही है उन्होंने ਅਸੀਂ कोलैबोरेशन करा के काम कर सकते हैं तो ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਏਗਾ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਐਨਐਸਐਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਅਨਪ੍ਰੈਸਿਡੈਂਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ तो ये रिसर्च सेक्टर है ਇਹਨੂੰ टाइम लगेगा मतलब सारी रिक्वायरमेंट यस्टरडे दी गई है क्या ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ तो आने वाले मेरे ख्याल 3-4-5 साल में अच्छे सक्षम हो जाएगी सर मेरे क्वेश्चन है ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਨਕਲੇਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ सो जैसे कि आज कनक्लेव हुई है तो स्टूडेंट्स पहले कितना इंटरेस्ट लेते थे कनक्लेव के बाद कितना इंटरेस्ट पैदा होगा एक सर्वे होता सी कि इकबाल सेट ने सर्वे किया ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 22% ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਪੇਸ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ so that kind of sense that every students they wanted to be in the space sector as Krishnakshu sir mentioned that this is required all the discipline space is cover all the discipline whether it's metallurgical electrical chemical physics all are to be covered so this is the only sector we require evaluation all the sector sir please sir इनके उसको मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ so मैं जनरली बच्चों से इंटरेक्शन करता रहता हूँ स्टूडेंट से ये जो उनको जानकारी मिली है आज क्या क्या स्पेस सेक्टर में हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है टू डिसाइड किस डायरेक्शन में जाना है अभी देखिए आप ये जो कोर्सेज हैं जो हमने डिजाइन किए हैं ये ब्रांच एग्नोस्टिक है जैसा कि हमारे कलीग ने बोला है कि ये सारे जो कोर्सेज हैं ये कोई भी ब्रांच का बच्चा ले सकता है मैंने देखा है जिस भी कॉलेज ने इसको अडॉप्ट किया है ना पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं 60 की क्लास के लिए 93 दूसरी यूनिवर्सिटी कह रही है हम आपको 140 आए तीसरी यूनिवर्सिटी कह रही है 75 वो फिर वो सैचुरेशन लगाते हैं कट ऑफ 60 40
हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। स्टूडेंट कंपटीशन में पहले एडिशन में हमारी 30-40 टीम थी, सेकंड में वो सडनली 160 आई, थर्ड में हमने फीस लगाई थोड़ी, इसलिए 115 आई। तो आप देखो क्या सीरियसनेस है। यहाँ के बच्चे, आप कल्पना चावला सेंटर में जाइए, किस तरह का सैटेलाइट बना रहे हैं। हम कहते हैं उसको कैनसेट है, पर उसका साइज लार्ज है, 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का एक उनको दिया जाता है बॉडी। तो इनको ये सब पता चल रहा है, उनको इंटर्नशिप का, उनको इमर्सन प्रोग्राम का, प्लस क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमने एक स्कीम बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ में मिलकर, हम उनकी डाटा ले रहे हैं, भाई कितना एफडीआई आ रहा है, अब उनके सर्वर से बढ़वाते हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट है आपके वहाँ, कितना एफडीआई है, कितना रेवेन्यू है आपका। तो ये सब पैरामीटर्स है टू गेज स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हो रहा है, कंपनीज कैसे रजिस्टर हो रही हैं, उनका रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, स्टूडेंट अडॉप्शन। मैंने पहले देखा था कि 12 इंस्टीट्यूट्स ने स्पेस टेक माइनर या मेजर शुरू किया है, लेकिन जब हमने एक स्कीम अनाउंस की, सेटिंग ऑफ अंतरिक्ष प्रयोगशाला, 58 कॉलेज आ गए, हम भी ये पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं पता था। अभी हमारा टारगेट बढ़ गया, अब हम कह रहे हैं 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को अगले 6 महीने में हम ये एंश्योर करेंगे दे आर टीचिंग स्पेस टेक एजुकेशन। स्टूडेंट के अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासा है जानने के लिए क्या क्या यूजेस हैं इसके, दे गेट मेस्मराइज, अपॉर्चुनिटीज हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल कंपटीशंस में जाते हैं वो, उनकी भी जानकारी है, हम देखते हैं कि वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रॉफी लेके आते हैं वहाँ से भी। तो बहुत कुछ हो रहा है मैडम देश में, और ये इनके लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। सरकार पूरी तरह खड़ी है, आप ये चिंता मत करो, वी आर देयर, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ये जो जनरेशन है, जब आप देखो स्काई रूट 28 साल की एवरेज उम्र है उनकी, और उन्होंने फर्स्ट टाइम पे वर्ल्ड में, बताओ किसने किया है, नासा ने किया है, इसरो ने किया है, या स्पेस एक्स ने किया है, चाइना, रशिया, नो, स्ट्रगल करते रहते हैं, लर्निंग। सो दैट जो लर्निंग है इसरो की, जो कैपेसिटी उनको अवेलेबल है, कैपेबिलिटीज, जो एक्सपर्टाइज इसरो की अवेलेबल है उनको, वो उनको हेल्प कर रही है। और ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। किसी का क्वेश्चन था यहाँ से, ये जो इसरो वाले जा रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी है। मेरे पे इतनी रिक्वेस्ट आती रहती है कि ये आप हमें एक्सपर्ट सजेस्ट कर दो। हमारी वेबसाइट पे हमने लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट डाल रखी है, हर एक उसमें वो कहते हैं सर अपना फोटो दे दो हमें, आप सिर्फ एडवाइस करो, हम करेंगे। तो उनके अंदर कैपेसिटी इन बच्चों के अंदर है, these students have the capacity to think, take the risk, or the one who takes risk is the get the maximum in this. I hope you got some. Thank you. Yeah. Sir, you're only thinking about satellites, rockets, but उसका applications है ना, वो बड़ा मार्केट है। आप 2-3 शब्द मैं बताता हूँ आपको। एक पंजाब का भी आपने चांसलर साहब ने बताया था, हमने एक देखा था इरिगेशन शेड्यूलिंग, ओके, डिमांड बेस्ड इरिगेशन शेड्यूलिंग, काफ़ी पैसा रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इसका। और वाटरशेड प्रोग्राम इधर भी है, नॉर्थ ऑफ पंजाब में भी है, और इसमें 12 to 14,000 रुपीज़ पर हेक्टर गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है ना। और आपका पहले मनरेगा, अभी श्री राम जी हुआ था, यू नो व्हाट इज द एनुअल एक्सपेंडिचर, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। बट उधर कहाँ पर क्या करना है, क्यों करना है, और कैसा कंजर्व करना है सॉइल रिसोर्सेज, ये सभी डाटा एनालिटिक्स हो रहा है। दैट्स अ बिग बिजनेस, रिकरिंग बिजनेस। क्रॉप इंश्योरेंस, वाटर सेस कलेक्शन, आप अंदाजा रखिएगा वो कितना बड़ा बिजनेस है ना। ये बिजनेस से भी काफ़ी स्मॉल सैटेलाइट्स वगैरह कर सकता है, बन सकते हैं। और बच्चों को इसको जानकारी देना है और सबको इकट्ठा करना है, और फैकल्टी को इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स बनाने का है, और इसलिए हम सभी इधर मौजूद हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर